Today we are going to start chapter 4 of class 9th maths, that is linear equations in two variables. This is the introduction part so that you will be able to do the first exercise very easily. So let's start. Linear equations in two variables is the name of the chapter. Let us understand the meaning of each word in a very clear manner so that you will be able to understand the chapter more easily. Linear. The degree of polynomial is 1. We have studied in polynomials chapter. जिन polynomials की degree 1 होगी means highest power 1 होगी, that will be termed as linear polynomials. Similarly, we can say the degree of equation is 1. अगर किसी equation की degree 1 है, that will be termed as linear equation. What does the word equations mean? कोई भी एक्सप्रेशन जो LHS इक्वल्स टू RHS फॉर्म का हो दैट विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन. मींस जिसे हम इक्वेट कर सकें, जिसमें इक्वल्स टू हो. सपोज आई राइट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. यहाँ इक्वल्स हो गया, ये इस फॉर्म में LHS इक्वल RHS की फॉर्म में. सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज. टू हियर इज इक्वेशन मस्ट हैव टू वेरिएबल. इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए. वेरिएबल्स वी हैव स्टडीड. The value of variable can keep changing. Variables are denoted by x, y, z and any other alphabet. So this is what the entire meaning of the chapter is. ऐसी equations जिनकी डिग्री 1 हो और उनमें दो variables होना जरूरी हो, that is called linear equations in two variables. Let us understand with the situation. In a one-day cricket match, टू बैट्समैन स्कोर्ड 176 रन्स. एक वनडे क्रिकेट मैच था, उसमें दो बैट्समैन ने टुगेदर, उनका सम में दिया हुआ है स्कोर्स का 176 रन्स थे. एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है ये. द स्कोर्स ऑफ बोथ द बैट्समैन इज अननोन. दोनों ही बैट्समैन के सेपरेट स्कोर्स अननोन है. दैट इज देयर टू अननोन क्वांटिटीज. पहले बैट्समैन की भी हमें स्कोर्स नहीं पता, दूसरे की भी नहीं पता, बस हमें टोटल पता है. So we can say let the scores of first batsman be x. हमने कोई भी वेरिएबल लेट कर लिया कि पहले बैट्समैन के x स्कोर्स हैं. Let the scores of second batsman be y. दूसरे बैट्समैन के सपोज कर लिया हमने y हैं. तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगी? x plus y is equals to 176. दोनों के मिला के स्कोर्स 176 गिवन है. So first batsman के स्कोर प्लस second batsman के स्कोर is equals to 176. So this is called the linear equation in two variables. इसमें दोनों variables की डिग्री 1 है, दो variables present है, इक्वेट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को. So in this way, this is a very good example of linear equation in two variables. Now let's see some more examples of linear equation in two variables. 1.2s plus 3t equals to 5, p plus 4q is equals to 7, pi u plus 5v equals to 9. इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में देर आर टू वेरिएबल एस एंड टी इन फर्स्ट, पी एंड क्यू, यू एंड वी. तीनों की ही डिग्री क्या है 1. सो ये लीनियर भी हो गया, टू वेरिएबल वाला भी हो गया, एंड इट इज अ इक्वेशन ऑल्सो. सो इन दिस वे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वी कैन राइट दिस फॉर्म एज 1.2s प्लस 3t. अगर हम माइनस को भी शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमें 0 मिलेगा. इसे हम लिख सकते हैं p प्लस 4q माइनस 7 इक्वल्स टू 0. दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज पाई u प्लस 5v माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो नाउ वी कैन डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट्स फॉर्म ऑल्सो. एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म जिसकी फॉर्म हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. इसी फॉर्म में हमने सारे एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट कर लिया था. Where a, b and c are real numbers, तीनों real numbers हो, such that a and b are not both 0. a and b एक साथ 0 नहीं हो सकते. That is called a linear equation in two variables. We'll discuss this thing in detail that a and b दोनों 0 नहीं हो सकते. What does that mean? But linear equation की first of all हमें form जानना बहुत जरूरी है. That is ax plus by plus c equals to 0. We know the form of equation in two variables. Equation of type ax plus b is equals to 0 are also examples of linear equation in two variables. This is a example of linear equation in
वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है, बट ये एग्जाम्पल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस b इक्वल्स टू 0। ax प्लस b, इसमें सिर्फ हमारा एक वेरिएबल है x, पर अगर हम लिख दे ax प्लस 0 इंटू वाई, y का कोफिशिएंट 0 हो गया, मतलब पूरी इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस b इक्वल्स टू 0। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की जो टाइप है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। If I write here x plus 5 is equals to 0, it is an equation in one variable, linear equation one variable है, but if I say you have to express it as linear equation in two variables, so how will you do? You will simply write it as x plus 0 into y plus 5 is equals to 0. A means coefficient of x is 1, coefficient of y means b is 0 and C is 5 in this way. हमने प्रीवियस जब अभी बात करी थी फॉर्म ऑफ इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, a एंड b शुड नॉट बी बोथ 0। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हम a को 0 रखें, b को 1, c को 6, तो हमारी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 मीन्स y प्लस 6 इक्वल 0। अगर वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे, और दो वेरिएबल में तो ऐसे। इन दिस वे दिस इज करेक्ट। बट इफ आई राइट a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 7, so what will be the equation? 0 into x plus 0 into y plus 7 equals to 0. Means 0 plus 0, 0 plus 7 equals to 0. Means 7 equals to 0 हो सकता है? No. That's why ये बात clearly लिखी हुई है that a and b should not be 0. दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। Then comes पॉइंट्स टू बी नोटेड while सॉल्विंग एन इक्वेशन। हमारी इक्वेशन कब नहीं अफेक्ट होगी अगर हम उसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज टू ट्रिक्स? द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। सपोज ये हमारी इक्वेशन है, अगर हम दोनों साइड ऐड कर दे, सपोज 2 हेयर ऑल्सो एंड हेयर, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने 2 ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी, तो हमारी पूरी इक्वेशन इफेक्ट नहीं होगी। If I subtract -2 from here and -2 from here in this way, तो भी हमारी पूरी इक्वेशन अफेक्ट नहीं होगी। Similarly, second point is you multiply or divide both the sides of the equation by same non-zero number. This is the same equation we'll take. अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, from both the sides, LHS और RHS दोनों से हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से इन इक्वेशन के दोनों साइड्स को, तो भी हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इफ वी जस्ट डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2 और एनी अदर नंबर, देन ऑल्सो, बट इट मस्ट बी अ नॉन जीरो नंबर, स्टिल इट विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। देन कम्स सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल की है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। एग्जाम्पल 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन निकालें, तो कैसे निकलेगा? 2x इक्वल्स टू -5, x आ जाएगा हमारा -5 अपॉन 2। यूनिक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज -5 अपॉन 2। सो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सपोज वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, लीनियर इक्वेशन है, x एंड y हमारे वेरिएबल्स हैं। सो अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखें, सो हम कंप्यूट करते हैं, अगर 2 इंटू 0
plus 3y equals to 12. 2 into 0 0 means 3y equals to 12. y would be 12 upon 3, that is 4. y 4 आ गया. So इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें मिला 0 4. पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं. सिमिलरली इफ हमारा x हमारे पास 3 गिवन है, तो हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को. 2 into 3 plus 3y is equals to 12. 2 3 is 6 plus 3y equals to 12. 3y is equals to 12 minus 6. 3y is equals to 6. y equals to 2 आ गया हमारा. So in this way, so इस इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन हमें मिल गया 3 2. सिमिलरली इस बार हम y की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है. 2x into 3 into 0 plus 3 into 0 equals to 12. 2x plus 0 equals to 12. 2x equals to 12. x is equals to 12 upon 2, that is 6. तो इसका एक सॉल्यूशन मिल गया हमें 6 0. So these are the solutions. अगर इसी तरीके से हम x की कुछ वैल्यूज रखें तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिल जाएंगी, या फिर y की रखें तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मिल जाएंगी. सो ये प्रोसीजर विल गो ऑन फॉर एवर. बट इफ आपको गिवन है 4 0, इसका एक सॉल्यूशन है या नहीं वो हमें इस इक्वेशन का चेक करना है. 0 4 तो हमें पता है मिल गया हमें, पर अगर हमें ये चेक करना है तो हम कैसे करेंगे. हम 4 मीन्स हमारा x कोऑर्डिनेट को x में पुट कर देंगे और y 0 को हम इसमें पुट कर देंगे. सो व्हाट विल कम 2 into 4 plus 3 into 0 equals to 12 आ गया. अगर ये तो ये हमारे सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, अदरवाइज नहीं. 8 plus 0 8 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 12. सो ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है. सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, और इस वाले मेथड से हम डिफरेंट इसकी वैल्यूज सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का. सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, जबकि 2 वेरिएबल्स में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. यू हैव सीन द मेथड हाउ टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन इक्वेशन. So I hope this concept must be clear to you. Now you'll be able to do exercise 4.1 and 4.2 very easily. If you have any doubt in any of the concept, you can ask your queries in comment section below.